الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہن کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری کرناٹک، آپ کے سامنے صلہ رحمی کے فوائد و قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری کو جوڑنا ہے اور قطع رحمی سے مراد رشتہ داری کو کاٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹنے والے عمل سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہتا ہے واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ والارحام، جو آپ سے آپ کے رشتہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ سے ڈرو، رشتہ داروں کے معاملے میں آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ سورہ نساء کی دوسرے مقام 36ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ سورہ نحل کی 90 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تم کو انصاف قائم کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وإیتاء ذی القربى، اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تم کو حکم دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، رشتہ داروں، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کیا کرو۔ وَآتِ ذَی الْقُرْبَى وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، راہ چلتے مسافروں کا اور رشتہ داروں کا اور تمہارے قریبی مسکینوں محتاجوں کا اللہ تعالی کہتا ہے کہ ان کا حق ادا کرو۔ سورہ الرعد کی 21ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا وہ لوگ اس رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں نبی نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَسْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے، اس کے مال میں بڑھوتری کر دے، تو نبی نے کہا اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مسند احمد ابن حبان صحیح مستدرک الحاکم میں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، ولا يزيد في عمره الا البر،
नेकी के सिवा तुम्हारे उम्र में कोई चीज बढ़ोतरी नहीं कर सकती। जब अल्लाह तबारक व तआला रिश्तेदारी को पैदा किया तो रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श को पकड़ ली। अल्लाह के अर्श को पकड़कर कहने लगी, ऐ अल्लाह मेरा हक अदा कर। अल्लाह ने उसका हक यह दिया कि मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह। रिश्तेदारी का हक अल्लाह यह दिया कि ऐ रिश्तेदारी, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको अपने से जोड़ लूंगा, जो तुझे काटेगा मैं उसको अपने से काट के रख दूंगा। क्या मतलब? जो रिश्तेदारियों को जोड़ेगा अल्लाह उसका रिश्ता अपने से जोड़ लेगा, जो रिश्तेदारी को काटेगा अल्लाह अपने से उसका रिश्ता काट के छोड़ देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं कि तुम अपने नसब को अच्छी तरह मालूम कर लो। नबी का हुक्म ये, तुम लोग जामे तिर्मिजी की हदीस, अपने नसब को हसब को अच्छी तरह मालूम करो। सहाबा ने पूछा क्यों अल्लाह के नबी? तो नबी ने फरमाया ताकि तुम अपने रिश्तेदारियों के साथ अच्छा हुस्न सलूक कर सको। हमारी रिश्तेदारी कहां तक है? हमारे माँ के रिश्तेदार कौन कौन है, हमारे बाप के रिश्तेदार कौन कौन है, रिश्तेदारी को अच्छी तरह जानकारी कर लो ताकि उनके साथ तुम हुस्न सलूक कर सको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु। जिस आदमी का ईमान अल्लाह की जात पर है, जो आदमी आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारी के साथ हुस्न सलूक करे। अब जिसका ईमान अल्लाह पर नहीं, आखिरत से उसे कोई सरोकार डर और खौफ नहीं, वो जैसा चाहे जिसके साथ सलूक करे, लेकिन आखिरत का डर अल्लाह पर ईमान जिसका है, ऐसे मोमिन को अल्लाह हुक्म देता है कि वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। एक आदमी आया नबी के पास, बुखारी की हदीस है, अबू अयूब अंसारी हदीस के रावी, और आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलल जन्नह। मुझे ऐसा अमल बताइए जिस अमल को अगर मैं करने लगूं तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। मुझे ऐसे काम बताइए। तो नबी ने क्या कहा? अन तअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया। एक अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक मत कर। व तुकीमस सलाह, नमाज को कायम कर। व तुअती ज़का, अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात भी अदा किया कर। व तसिल रहिमा, और जितने तेरे रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा सलूक कर, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। ये जन्नत में जाने वाले आमाल अल्लाह के नबी ने बताए। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, एक सहाबी जिनका नाम खुसअम कबीले के एक आदमी नबी के पास आए और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन सा अमल करूं जो अल्लाह ताला ज्यादा पसंद करे? मेरा कौन से अमल को अल्लाह मोहब्बत करने लगेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह की जात पर ईमान रखना ये अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। फिर कौन सा अमल? अल्लाह के नबी ने दूसरे नंबर पर बयान फरमाया, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना अल्लाह को हद से ज्यादा पसंदीदा अमल है। तीसरा, उसके बाद मैं क्या करूं? तो नबी ने कहा, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम किया कर, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोका कर। यह अल्लाह को हद से ज्यादा पसंदीदा काम है। तीन अमल बताए, अल्लाह पर ईमान, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। क्या हम लोग ये काम कर रहे हैं? क्या आज हम लोगों में भी रिश्तेदारी हमारी बहुत है। हमारे माँ का खानदान, बाप का खानदान, बहुत लंबा खानदान, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे साथ अच्छा सलूक करता हमें उसके साथ अच्छा सलूक कर, जो हमारे से कांटेक्ट में रहता हमें उसके साथ कांटेक्ट में रहते, जो हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं रहता हमें उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहते, जो हमारी शादियों में आता हमें उसकी शादियों में जाते, जो हम ना बंद तोहफे रखता हमें भी उसे तोहफे देते। इसे हुस्न सलूक नहीं बोलते, इसे अदला बदली बोलती। क्या बोलती? अदला बदली, फेटा फेटी। यहाँ आंध्रा में, तेलंगाना में क्या बोलती मालूम नहीं, हमारे कर्नाटक में फेड़ा फेड़ी। उन्हें इसे हाजी बोल रहा, उन्हें उसे हाजी बोल रहा, उन्हें उसके साथ तोहफे भेज रहा, इन्हें उसके साथ तोहफे भेज रहे, उन्हें उसे सलाम करता, इन्हें उसे सलाम कर।
ارے کمال تو تب ہے جب آپ کے وہ رشتہ دار جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھتے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، جو آپ کے گھر کو تحفے تحائف نہیں بھیجتے ان کو تحفے تحائف بھیجنا، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے اصل رشتہ داری، یہ ہے اصل حسن سلوک، یہ ہے اصل رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ ہم لوگ کہاں کرتی ہیں؟ ادلا بدلی کرتی، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا کرنے والے، ورنہ اس کا لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی مدینے میں۔ نبی علیہ السلام کی چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت کے الزام لگائے منافقین نے۔ اب ہوا گرم ہو گئی، مدینے کا ماحول بگڑنے لگا، لوگ چہمگویاں کر رہے تھے، منافقین تو آگے تھے ہی تھے، لیکن ان میں بعض صحابہ بھی چلے گئے، تین صحابہ اس میں چلے گئے، وہ بہکاوے میں۔ ہو سکتا بھئی انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی ہونگا، ایسا بولنے والے ہو گئے۔ ان میں ایک صحابی کون تھے؟ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مستح بن اساسہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، ان کے پاکٹ منی، جیب خرچ، ان کے گھر کے راشن پانی کے واسطے مہینہ وظیفہ دیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پتا چلا ابو بکر صدیق کو کہ میری بیٹی کو الزام لگانے والے میں میرا یہ خالہ زاد بھائی بھی ہے، یہ وہ شخص ہے جو میرے سے وظیفہ لے کے گھر چلاتا اور میری بیٹی پہ الزام لگاتا، قسم کھا لیے اور ایک مرتبہ اسے میں کوسا بھی وظیفہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے، سورہ نور کی 22ویں آیت، وَلَا يَأْتِ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور کی 22ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو ان لوگوں پر نازل کرتا ہے تنگی کے باوجود، اور ان میں سے بعض خرابت دار رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مہاجرین پر، راہ چلتے مسافروں پر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ یہ درگزر کرے، معاف کرے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ جب یہ آیت اتری، اس آیت کا مطلب کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ابو بکر کے اس قسم پر کہ میں آج کے بعد مستح کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے آیت نازل کر کے کہا، اللہ تم نہ آسمان سے نازل کر رہا بول کے نہ آپ ان کو دے رہے، اگر اللہ اپنا فضل آسمان سے تم پر روک لیا تو، اگر اللہ اپنا رحم و کرم، اللہ اپنا فضل و کرم تم پر دے رہا بول کے نہ تم 10 آدمیوں کو بانٹ رہے، اگر اللہ اپنا فضل روک لیا تو کیا تم نہیں چاہتے اللہ تم نہ کنٹینیو دیتا رہے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے جو غلطی کر رہی ان کو معاف کر دے، درگزر کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے درگزر کرنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت کرے؟ یہ آیت اترنا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ پڑے اور انہوں نے کہا، بلا واللہ یا ربی، کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار، بلا واللہ یا ربنا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، اِنَّا نُحِبُّ أَن تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہم چاہتے ہیں تو ہماری مغفرت کر دے۔ انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنٹینیو وظیفہ دینا شروع کرے، کنٹینیو دے، تمہیں جو کرنا کرو بھائی، میں میرا حسن سلوک تمہارے ساتھ برابر کر دو۔ آپ بھی کسی رشتہ داروں کو راشن دلاتے ہوں گے، کسی رشتہ داروں کو آپ اسکول کی فیس پے کرتے ہوں گے، کسی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں گے، نیکی چھپا کر کرتے ہوں گے۔ اتفاق سے وہ رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو یہ جو نیکی کر رہے ہیں نا آپ ہرگز نہیں چھوڑنا، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ انہیں آپ کے ساتھ برا کرنے دو، آپ اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اللہ دے رہا بول کے نا آپ اس کو دے رہے، اگر اللہ دینا روک لیا تو آپ اس کو دیکھنے سے روک لیتے، ایک غریب کو دینے سے روک لیتے، آپ اللہ آپ کو دینے سے روک لیا تو
मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान बहुत सारी जगह सदका खैरात करता है, मस्जिद को देता है, मदरसे को देता है, गरीबों को देता है, 10 जगह खैरात करता है। लेकिन नबी ने कहा वो माल जो अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करता है, वो माल अल्लाह ताला को इतना पसंद है, ये 4 जगह उसने जो सदका, यहां गरीबों को दिया, मिस्किनों को दिया, मोहताजों को दिया, बेवाओं को दिया, मुसाफिरों को दिया, और इधर बीवी बच्चों को दिया। बीवी बच्चों को सदका खैरात नहीं दिया, 4 गरीबों को सदका खैरात दिया, लेकिन बीवी बच्चों को खुद इसकी बीवी, खुद इसके बच्चे, इसका तो हक है पालना, इसका तो हक बनता राशन लाके देना। वो अपनी बीवी बच्चों को पालने के बराबर राशन भी दिया, लाकर तरकारी भी दिया, वगैरह वगैरह, खिला पिला रहा। अल्लाह बोलता मिस्किन, मोहताज, गरीब, यतीम, मुसाफिर, 10 जगह तूने माल खर्च किया, यहां तेरी बीवी बच्चों पे जो खर्च किया, इस खर्च को अल्लाह ताला तेरे लिए सदक़े में सवाब लिखेगा, और इन 10 जगह सदका करने से ज्यादा सवाब तेरे बीवी बच्चों पर खर्च करने पर अल्लाह तुझे देगा। क्या प्यारा निजाम है जी अल्लाह का, क्या बेहतरीन निजाम है अल्लाह का। हालांकि हम सदका खैरात नहीं कर रहे बीवी बच्चों पे, ये तो हमारा फरीजा है, हमारा हक है। हमारे बीवी बच्चों को हम नहीं कमा कर खिलाएंगे तो कौन कमा कर खिलाएगा, कौन लाकर डालेगा। अल्लाह का निजाम देखो, तुम अपना हक अदा करते रहो, वो तुम्हारा खर्च करना हम सदके में शुमार करेंगे। न सिर्फ सदका, सबसे बेहतरीन सदका 10 जगह यतीम, गरीब, मिस्किन, मोहताजों को जो तुम देते, उससे भी डबल सदका का सवाब हम तुम्हारी बीवी बच्चों पर खर्च करने पर देंगे, तुम्हारे माँ बाप पर खर्च करने, तुम्हारे घर वालों पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, तुम्हारे अपने कराबतदारों पर खर्च करने पर अल्लाह वो अजर देगा। 2 अजर देगा, एक सदका खैरात का अजर देगा, दूसरा सिला रहमी का अजर देगा, दुगना अजर देगा रिश्तेदारों पर खर्च करने से, घर वालों पर खर्च करने से। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक लौंडी थी जिसका नाम था मैमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक लौंडी थी इनके पास, मैमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने आजाद कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो नबी कहने लगे, अगर तू अपनी लौंडी को अपने ननिहाल को वक्फ करती, अल्लाह तुझे दुगना अजर दे। एक सदका आजाद करने का सवाब देता, और दूसरा अल्लाह ताला तेरे रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने का तुझे अजर देता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, यह है रिश्तेदारी को जोड़ने की फजीलत। अब आइए रिश्तेदारी को काटने की क्या मजिम्मत है वो मैं बयान करूं। रिश्तेदारियों के साथ बुरा सलूक करने का क्या मजिम्मत है, क्या उसका सजा है, क्या उसका बदला है, ये मैं आपके सामने बयान करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सबसे पहले अपने जहन में बिठा ले। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउर रहम, जन्नत में वो लोग नहीं जाएंगे जो रिश्तेदारी काटेंगे। सबसे प्यारी हदीस, सबसे बेहतरीन हदीस, ला यदखुलुल जन्नह, वो आदमी जन्नत में नहीं जा पाएंगे, कातिउर रहम, जो रिश्तेदारियों को काटेगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जब अर्श से रिश्तेदारी पकड़ की, जब अल्लाह ने रिश्तेदारी को पैदा किया, सिला रहमी को, अर्श को पकड़कर उसने कहा, मेरे अल्लाह मेरा हक अदा कर, तो अल्लाह ने क्या कहा था, जो तुझे जोड़ेगा अल्लाह उसको अपने से जोड़ लेगा, जो रिश्तेदारी काटेगा अल्लाह अपने से उसे काट देगा। इससे बढ़कर और क्या जिल्लत है उस आदमी के लिए। तुम दुनिया में रिश्तेदारियां काटते फिरो, अल्लाह अपने से तुम्हारा नाता काट के सड़ देगा। अरे जिसका नाता अल्लाह अपने से तोड़ दे, दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान हो। जिस शख्स को अल्लाह धुतकार दे, अल्लाह निकाल कर फेंक दे, दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त, कमबख्त, बकील और सबसे बदनसीब इंसान वो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा दुनिया में बहुत जल्द अल्लाह दे देता। एक बगावत, दूसरा रिश्तेदारी को काटना। बगावत पर तुलाना इंसान, मिसाल के तौर पर कोई आपके साथ बुरा सलूक किया, कोई आपको गाली दिया, कोई आपके घर में पड़ोसियों ने लाकर कचरा डाल दिया, आपको तकलीफ हुई, आप क्या कर रहे हैं, फौरन बदला लेने के लिए अस्तीना चढ़ा लेके जाके खड़े हो जा रहे हैं। इसे बोलती बगावत। किसी ने आपके बच्चे को मारा,
अब उसका बदला लेने में जर्रा भी ताखिर नहीं कर रहे आप, फौरन अस्तीना चढ़ा लेके गए, कौन रहे हो, मेरे बच्चे को मारा सो। इसे बोलती बगावत। आपने गलत नहीं किया भाई, आप बिल्कुल सही हैं, आपके बच्चे को मारे बोल के आप जा रहे हैं। अल्लाह क्या बोलता, कोई भी आपके साथ बुरा सलूक करे तो बदला लेने में जल्दबाजी नको करो, बदला लेने में जल्दबाजी नको करो। क्यों नको करो? अल्लाह तुमको ताकत दे के आजमाता, अखले सलीमा दे के आजमाता, इल्म दे के आजमा। उन्हें जाहिल उन्हें करास वाला, तू भी इल्म वाला हो के जाहिलों के काम करता क्या? उन्हें कमजोर भाई तेरे बच्चे को मारा वाला, अल्लाह तुझे कुव्वत दिया, अब तू डाल के उसे दबा के मार देता क्या? अल्लाह की नबी क्या बोलती है, हक पर रहकर भी अगर झगड़ा करना छोड़ दो, अल्लाह ताला जन्नत के दरमियान में तुमको महल अता करेगा। जन्नत में चंद दरमियान में महलात बना रखा है, उन महलों में से एक महल की जमानत दी अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के उस आदमी को जो हक पर तो रहता है लेकिन किसी से झगड़ता नहीं, माफ कर देता है। जा भाई तेरे से गलती हुई क्या, मैं चाहे तो बदला ले सकता हूं, मेरे अंदर इतनी पावर है, लेकिन मैं बदला नहीं लेता, जा मैं माफ कर दे। अल्लाह को इतनी पसंद यादा, अल्लाह जन्नत के दरमियानी महलों में एक महल देने का वादा किया। कोई रिश्तेदार आपके साथ कुछ बुरा कर दिए, फौरन फोन लगा के धज्जियां उड़ा दे रही फोना में, कैसा तुम्हें बोले, कैसा रे तू बोलता, कैसा गे तू बोलती, अस्तगफिरुल्लाह, क्या भी नहीं बचाता। अरे तुरे अगे तुगे यतास में गाली गलोच पर उतर आ जाती। कैसा जी तुम्हें बोले ये बात, कौन जी तुमने सिखाया, आओ जी यहाँ पहले घर में तुम्हारी दाल खड़ा कर रख डाल तुम्हें, ऐसा ऐसा। जितना इसका चलता बोल को चला लेता, जितना इसकी बनती बोल के बना लेता, जितनी दाल गलती बोल के गला लेता। अरे तेरी दाल गलाने वाला ऊपर बैठा, कमजोरों पर अपनी ताकत की आजमाइश मत कर। हमारी चलती बोल के नहीं चला लेना, हमारी दाल गलती बोल के नहीं गला लेना। हर ताकतवर से बड़ा एक ताकतवर अल्लाह दुनिया में पैदा करके रख डाला। तू नम्मे रुस्तुम खां, तू नम्मे तीसमार खां, तू नम्मे बड़ा पहलवान, तेरे से बड़े पहलवान का अल्लाह दुनिया में बना को रखा। बगावत, खता रहमी, अगर कोई आदमी करया अल्लाह दुनिया में किसे जलील कर डालता। ये दो जुर्म ऐसे हैं, हर जुर्म की सजा अल्लाह आखिरत में देता, लेकिन ये दो जुर्म ऐसे हैं जिसकी सजा दुनिया में चल्ला दे डालता, दुनिया में चल्ला दे डालता। रिश्तेदारी को काटना और किसी से बगावत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हर पीर हर जुमेरात नबी अलैहिस्सलाम रोजा रखते थे। क्यों रखते थे? हर पीर हर जुमेरात क्यों रखते थे? नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी क्यों रखते हैं आप रोजा? नबी ने बयान फरमाया, पीर और जुमेरात को बंदों के नाम अमल अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं। मैं चाहता हूं कि रोजे की हालत में रहूं, अल्लाह हर एक की मगफिरत करता, वो नाम अमल देखता, ये किसका, ये अब्दुल्ला का, ये अब्दुल रहमान का, ये अब्दुल रहीम का, ये अब्दुल अलीम का, ये सलीम भाई का, ये मकबूल भाई का, फला फला फला, अल्लाह सबकी मगफिरत करता। इसे इसने इतने नहीं किया, इस हफ्ते में इसने ये गुनाह किया, जाओ मैंने उसे माफ कर दिया। इसने इस हफ्ते में ये नेक काम किए, ये बुरे काम किए, जाओ मैंने उसके बुराइयों को मिटा दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं, हर इंसान के खताओं को, बुराइयों को अल्लाह मिटाता है, लेकिन उन दो आदमियों की बुराइयों को नहीं मिटाता, उनके गुनाहों को माफ नहीं करता जो आपस में खता रहमी किए बैठे हैं। अदावत, दुश्मनी, हसद, कीना, कपट, बुग़्ज़, एक दूसरे से खता रहमी करे बैठे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नहीं करता। अल्लाह क्या बोलता, उनको मोहलत दो, जब तक कि ये लोग अपनी सुलह नहीं कर लेते, आपस में इस्लाह नहीं कर लेते, उनकी मग़फ़िरत नहीं करता हूं, बोलता अल्लाह ताला। और हम लोग आपस में एक दूसरे के भाई रह सकते। इन्नमल मुमिनून इख्वा, ऐ मोमिनो तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो। फास्लिहु बैना अख्वैकुम, अपने आपसी मामलात बैठकर सुलह कर लिया करो। छोटे मामले को सवा के बरसा के मुद्दता से दुश्मनी लेके आगे मत बढ़ो। क्या कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, चार आदमियों को बिठाओ, किसी एक दोस्त को दरमियान में सुलह करने के लिए बिठाओ, इंसाफ करने बैठो, अपना मसला रखो और दिलों का कीना कपट साफ कर लो। कितनी बेहतरीन बात ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क करने वाले मुसलमान की कोई इबादत अल्लाह एक सिर के बिलिष्ट ऊपर नहीं ले जाता। 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क करना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बातें छोड़ दिया, चाहे वो जमात वाला हो, पड़ोस हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, हमारा करीबी घर वाला हो, कोई भी हो, 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क करने वाला, मर्द होकर मर्द से, औरत होकर औरत से, रिश्तेदार होकर रिश्तेदार से, जिनसे वो बात करना जायज है, अगर बात छोड़ दे 3 दिन हो जाए
नमाज, रोजा, दुआ, इबादत, हज, जुमरा, कुर्बानी, कोई आसमान में जाना तो दूर की बात, सिर के बिलिश तो परिश नहीं जाती। अब आसमान में क्या जाती है, अल्लाह क्या कबूल करता? हरगिज नहीं कबूल करता। सामने वाला आपके साथ दुश्मनी कर रहा ना, करने दो, आप जाके उसको सलाम करो ताकि अल्लाह आपकी इबादत आसमान में ले जाकर कबूल करा सके। हर पीर, हर जुमेरात बंदों के नामा अमाल जाते हैं ना, अल्लाह आपकी मगफिरत कर सके। आप जाओ, अपने भाइयों को सलाम करो, अपने रिश्तेदारों को सलाम करो। एक सहाबी आए, बोले अल्लाह के नबी, मेरे चंद रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ सिला रहमी करता हूं, उन्होंने मेरे साथ खता रहमी करती, मैं उनके साथ हुस्न सलूक करता हूं, उन्होंने मेरे साथ बदसलूक करती, मैं क्या करना? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू उनके साथ हुस्न सलूक कर, बदसलूकी मत कर। सिला रहमी का मतलब यह है, कोई तेरे साथ सिला रहमी करे, बदले में तू उनके साथ सिला रहमी करे, यह सिला रहमी नहीं है, यह बदला बदली है। सिला रहमी तो यह है कि कोई तेरे साथ खता रहमी करे और तू उसके साथ सिला रहमी करे। कोई तेरे रिश्ते को काटने की कोशिश करे, तू उसे जोड़ने की कोशिश करे, यह अदा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद, यह दिल जिगर का काम है। आपके साथ कौन की आओ भाई एक चाय पियो बोले तो आप भी नहीं, मेरे भाई आओ जूस पियो कहते, ये सब लोग बोलती, अरे आओ जी नाश्ता करो बोल के आपको नाश्ता अगर कोई पका के भेजा, दूसरे दिन मुर्गी की बिरयानी बना के आप उसके घर को भेज दी है तो सब लोग करती हैं। कमाल तो तब है जब आपको कोई भी ना खिलाए और आप उसको ले जाकर खिलाओ। कोई रिश्तेदार आपके साथ बुरा सलूक करे, बातें छोड़कर आपके साथ कीना कपट रखे और आपके साथ अच्छा, आप उसके साथ अच्छा सलूक करो, यह है असल सिला रहमी। अल्लाह के नबी ये ना कर को लोगों के दिल जीतते थे। दुश्मन आप बद्दुआ करते थे, मारते थे, मारा खा को भी नबी दुआ देते थे। अल्लाह अकबर। बोलने मेरे को आसान लग रहा, आपको सुनने आसान लग रहा, अमल करके देखो, दिल जिगर का काम ये, मारा खा को दुआ देना मामूली काम नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं, तेरे बाज रिश्तेदार तेरे साथ खता रहमी करती हैं और तू उनके साथ सिला रहमी करता, वैसे ही किया कर। अगर तू तेरी बात में सच्चा है तो अल्लाह का एक फरिश्ता तेरी मदद करेगा। तू अपनी नेकी पर कायम रह, उन्हें बुरा कर रही बोल के तू उनके साथ बुरा करने मत जा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लैसल वासिलु बिल मकाफी वलाकिन्नल वासिलु अल्लज़ी इज़ा ख़तिअत रहिमहु फल्यसिल। रिश्तेदारी जोड़ने का मतलब यह नहीं कि कोई तुझसे जोड़े तो उनको जोड़े। रिश्तेदारी जोड़ने का मतलब यह है कि कोई तुझे काटे तो तू उनको जोड़कर बताए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे 5 नसीहत फरमाई। पहली नसीहत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि को जिंदगी में हमेशा अपने से बड़े मालदारों पे निगाह मत रख, बल्कि अपने से गरीबों पे निगाह रख। तेरा दिल हमेशा अल्लाह के लिए शुक्रगुजार बंदा बनकर रहेगा। अगर अपने से बड़े हाईफाई लोगों को देखेगा तो तेरा दिल नाशुक्रा बन जाएगा। अपने से कमतर लोगों पर निगाह रख, नंबर 1। नंबर 2, मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के साथ हुस्ने सुलूक किया कर। नंबर 3, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक कर, चाहे वो तेरे साथ बुरा सुलूक करे। नंबर 4, दीन के मामले में हक बात बोलने से मत घबरा, हक बात जरूर बोल, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। और नंबर 5, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ा कर, क्योंकि जन्नत के खजानों में का एक खजाना है। तो इंसान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ेगा, अल्लाह की गैबी ताकत, अल्लाह की गैबी मदद उसके साथ होती रहेगी। कोई दुनिया का माई का लाल उसका बाल बेका नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना जबरदस्त पावरफुल फार्मूला है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत उक़बा बिन आमिर कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा और कहा, या उक़बा, आए उक़बा सुन ले, सिल मन क़ताअक, तू उसके साथ अच्छा सुलूक कर जो तेरे साथ बुरा सुलूक करे। व आती मन हरमक, उसको तू देना शुरू कर जो तुझे नहीं दिए जैसा महरूम कर दे। वाफू अमन ज़लमक, और तू उसे माफ किया कर जो तेरे साथ जुल्म ज़ियादती करने पर तुला हुआ हो, तू उनको माफ करने की कोशिश कर। ये 3 काम अल्लाह के नबी ने बयान फरमाए। मेरे भाइयों, जो इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा उसके साथ अच्छा करना,
जो जुल्म कर रहा है उसे माफ करना, एक हद तक माफ करना, जुल्म बर्दाश्त करना भी एक जुल्म को बर्दाश्त करना भी एक जुल्म, एक हद तक माफ करना। आपको हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मालूम आपको? मैं आपको पूछ रहा हूं, मालूम नहीं मालूम? साद बिन मुआज की सीरत मालूम आपको? नहीं मालूम। एक ऐसे नौजवान सहाबी है ये साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करे, 36 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। 30 इयर्स में इस्लाम में आए, 36 में ये दुनिया से चले गए। इस्लाम में कितने साल जिंदा थे? सिर्फ 6 साल। क्या जिंदगी थी जी इनकी, 6 साल की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 6 साल जिंदगी मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई, जब साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ तो अल्लाह का अर्श हिल गया, अल्लाह का अर्श हिल गया। अरे दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए जी, बड़े बड़े जलील कद्र अंबिया रसूल आए, उनके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श नहीं हिला। साद बिन मुआज की वो 6 साल जिंदगी अल्लाह को क्या पसंद आई होंगी, इनके मौत पर अल्लाह का अर्श हिल गया। अल्लाह इनकी नमाज जनाजा के लिए 70,000 फरिश्तों को दुनिया में नाजिल किया। जरा पढ़कर देखो ये 6 ईयर कैसे गुजारे होंगे, ये 6 साल कैसे गुजारे होंगे। मेरे भाइयों, एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावती काम कर रहे हैं और आपने कहा कि अला अन तुहिब्बूना अन युरा मिन अहलिल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? सहाबा ने कहा है लग उन्जुर हाज़ा रजुल हिया मिन अहलिल जन्ना, उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से। लोग पलट कर देखे, वो साद बिन मुआज थे। दूसरे मौके पर भी नबी ने ऐसे ही कहा, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी बताइए ना, हम जन्नती को देखना चाहेंगे। उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से। लोग पलट कर देखे वो साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक तीसरे मौके पर नबी ने ऐसे ही कहा, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी ने कहा उस आदमी को देख लो वो जन्नतियों में से है। सहाबा देखे वो साद बिन मुआज है। अरे 3 मर्तबा एक सहाबी उनके पीछे हो लिए और जाकर बोले घर में, अरे मेरे साथी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारी मायत में रहना चाहता हूं। ठीक है, 3 दिन रहे, क्या अभी नया अमल नहीं देखे? 3 दिन के बाद बोले क्या तो भी करती हूं भाई आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से कई दिन पहले आपको जन्नती 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 बोले, हम ये देखना चाहते थे आपके अंदर क्या वैसा अमल है। लेकिन मैंने गौर किया, वही नमाज जो हम पढ़ते, वही कुरान की तिलावत जो हम करते, वही कुरान, वही अल्लाह की तस्बीह जो हम पढ़ते, आप भी वही करते, कोई हटकर नया काम हमने नहीं देखा। फिर जन्नती होने की बशारत अल्लाह ने आपको ऐसा। मेरे को ये बात बोले अल्लाह के नबी, या अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, अल्लाह तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। उसके बाद साद बिन मुआज एक बात बोले, मेरे भाई मेरे अंदर एक नेकी का काम जरूर है। वो क्या है? जब भी मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए आता हूं तो एक काम करता हूं। क्या है? मेरे सीने में किसी के खिलाफ कीना नहीं रखता, मैं सबको माफ करके सो जाता हूं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह जिसने मेरी बुराई की, जिसने मेरी गीबत की, जिसने मुझे गाली दिया, जिसने मुझसे झगड़ा किया, जो मेरे पीठ पीछे बुरा चाहता है, मेरा बुरा करता है, मैं उन सबको माफ करता हूं। अल्लाह उन सबको मैं माफ करता हूं। ऐ अल्लाह तू उनको भी तौफीक दे, जाने अनजाने में अगर मैं भी उनको कुछ तकलीफ दिया हूं तो वो भी मुझे माफ कर दें। ऐ अल्लाह मैं सबको माफ करता हूं, जितने मेरे बुरे चाहने वाले, मेरे दुश्मना, मेरे अड़ोसियां पड़ोसियां रिश्तेदारां जो भी है, जो भी मेरा बुरा चाहती, जिन्होंने मुझसे मेरे साथ बुरा सुलूक किया, सबको मैं माफ करता हूं। ऐ अल्लाह उनको भी तौफीक दे, वो भी मुझे माफ कर दें। ऐ अल्लाह मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। बस ये हमेशा बोल के सो जा। अल्लाह के नबी को आकर बोले तो नबी बोले, उनकी इसी अदा से अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत सुनाई। मेरे दीन और इस्लामी ये काम हमें करनी क्या जी? ये काम हमारे अंदर है क्या? इतना बड़ा जिगर है क्या हमारे पास? कौन की क्या की एक बात बोले बोल को महीने महीने से क्या साला साला से बातें छोड़े फिरती। उन्हें भी मुंह डिंगा कर लेता, हमें भी मुंह डिंगा कर लेती। क्यों? उन्हें मुझे सलाम नहीं कर रहा, मैं कहीं उससे सलाम करूं। वो बेटा मेरे काने नहीं झुक रहा, मैं कहीं उसका नहीं झुकू। ये अनानियत में, तकब्बुरीपन में, ये अकड़ूपन में बरसों बरसों से बातें छोड़ती है। आपका नुकसान क्या हो रहा मालूम? ना आपकी कोई इबादत आपके सिर के एक बिलिष्ट ऊपर जारी,
ना पीर और जुमेरात को अल्लाह आपकी मगफिरत कर रहा, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपकी नजात मुमकिन। खता रहमी करने वाला जन्नत में जाता नहीं, बोले अभी क्या सूरत लिख जाती तुम्हें क़यामत के दिन। अल्लाह आजमाने के वास्ते भेजा जी, अच्छा सुलूक करो, नेक सुलूक करो, माफ कर को सो जाओ। फतेह मक्का के दिन जानी दुश्मना, सहाबा को काटे सो वाले, सहाबा को कत्ल करे सो खातिला। फतेह मक्का के दिन नबी के सामने हाथ बांधे सलेंडर हुए खड़े, अपने आप को सलेंडर किए खड़े। अल्लाह के नबी चाहते मुल्ली गाजरों की तरह सहाबा के हाथों में तलवार आंधे एक एक कलंक के गर्दना उड़ाने लगा सकते थे, लेकिन नबी ने क्या कहा, इज़हबू अंतुम तुलखा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ तुम सब आजाद हो, आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेता, तुम सबको मैंने वैसे माफ किया जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया। हमें कहीं कुछ नहीं करते। मक्के वाले तो जान खा को जीरा पीस डाले, नबी के सहाबा को मार डाले, सहाबियात की जान ले लिए। ऐसे जानी दुश्मनों को अल्लाह के नबी माफ करे, क्या वो मक्के के जालिमा से भी ज्यादा नुकसान पहुंचेंगे? क्या तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अड़ोसा, तुम्हारे पड़ोसा, तुम्हारे जमात वाले, उनसे भी बड़ा नुकसान पहुंचाए हैं क्या जी? कहीं को दिल में कीना रख ले मर रही जी, एक ना एक दिन मरना जरूर है। सीने को साफ करके मरो, सीने में कीना रखो नको मरो, सीने को साफ करके मरो। अल्लाह के पास एक दिन हाजिर होना है, सूरत दिखाना है, कि ये अमाल का बदला देना है, अच्छे होकर जाओ जी। सीना अंदर से कैसा रहना मालूम, जैसा चेहरा फिल्ट्रेशन रहता, देखो अंदर से सीना भी फिल्ट्रेशन रहना, चेहरे पर मुस्कुराहट, सीने में कीना, अस्तगफिरुल्लाह, मुनाफिकों का चेहरा ये, ऊपर से एक अंदर से, ऊपर से हंसते रहती हैं, क्या वही अच्छे हैं, क्या वही हजरत सलाम अलैकुम अच्छे हैं क्या, पीछे से ये मेरा बेटा कब मरता की रे, कोरोना की मौत नहीं मरा देख रे, एड्स को मरना रे, कोरोना के कैंसर की बीमारी, ऐसा बदुआ चाहती है, अस्तगफिरुल्लाह। ये मुनाफिकों का सीना जी, ये मुनाफिकों का सीना मत रखो। तुम्हारे जाहिरी चेहरे को दुनिया देखती होगी, तुम्हारे दिल की कैफियत को अल्लाह जानता है, अल्लाह देखता है। अल्लाह से छुपी हुई कोई चीज नहीं। ऊपर से जैसा सूरज सुन्ना रख ली, अंदर से भी सुन्ना रख ले, अंदर का पूरा चुन्ना भर को पड़ा तुम्हारा, वो सुन्ने को, वो चुन्ने को सुन्ना बना लो, ऊपर से भी सोना रहो, अंदर से भी सोना रहो। ऊपर देखें सुन्ना, अंदर पूरा चुन्ना। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर तुम्हारे रिश्तेदार काफिर भी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार काफिर, गणेश की पूजा करने वाले, ईश्वर परमेश्वर की पूजा करने वाली, मूर्तियों की पूजा, वैसे मुशरिका है तो भी इस्लाम क्या हुक्म देता, उनके साथ सिला रहमी करो। अस्मा बिनते अबी बकर, अबू बकर की बीवी, अम्मा आयशा की मां, अभी सुलह हुदैबिया के मौके पर इस्लाम नहीं लाई थी, वो एक मर्तबा घर आ गई। नबी से अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जाकर पूछा, मेरी मां आई है मेरे घर पे, मैं क्या करूं? वो आप पर ईमान नहीं रखती, वो इस्लाम को नहीं मानती, वो काफिर है। नबी ने कहा, वो तेरी मां है, जा उसके साथ हुस्न सुलूक कर, जा उसके साथ हुस्न सुलूक। अरे इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है, काफिर रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सुलूक की तरगीब दिलाता, काफिर रहने उन्हें, लेकिन मां, इसका मतलब ये नहीं मुशरिक माँ बाप हैं तो उनकी इताअत लाजिम वाजिब नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी माँ बाप की, किसी उस्ताद की, किसी बुजुर्गों की, किसी बड़े शौहर की इताअत तुम्हारे पर वाजिब नहीं। अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे रही, जाओ जी दरगाह पर चादर चढ़ाना, जाओ जी मज़ारों पे उर्स करना, जाओ जी खबरों पे फला सजदे करना, ये शिर्क का हुक्म दे रही, तो हरगिज नहीं मानना, किसी की भी बात नहीं मानना। और इसी तरह शैतान सबसे ज्यादा खुश कब होता, शैतान सबसे ज्यादा खुश कब होता, जब रिश्तेदारियों को काटा जाता सबसे ज्यादा खुश होता शैतान। आपको मालूम, बुखारी की एक मशहूर हदीस, शैतान असर के बाद लोगों को पूरी दुनिया में फितने फैलाने छोड़ देता। शैतान का अर्श पानी पर है, शैतान का अर्श कहां है? पानी पर है। वो कौन से पानी पर? अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बाज लोग बोलती हैं अमेरिका के बाजू एक जजीरा है जिसे मसलस बरमोड़ा बोलती, वहां आज तक जो भी समंदरी जहाज, चाहे वो बहरी जहाज, बर्री जहाज, ऊपर से उड़ने वाला, समंदर पर तैर को जाने वाला, अंदर से जाने वाला, कोई सा जहाज भी आज तक वापस लौट कर नहीं आया। मसलस बरमोड़ा, वो बरमोड़ा का ट्रायंगल, वो क्या उसका मुअम्मा है, क्या उसका राज है, कोई दुनिया आज तक नहीं जा सकी।
सुपर पावर, वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका के बाजू है वो मसलस बरमोड़ा, वो बरमोड़ा का वो क्या मुअम्मा है आज तक कोई सुलझा नहीं सका, जमाने से आज तक कोई वहां गयास वाला वापस नहीं, वो कहा अत्ता पत्ता नहीं सरका, मिलियामेट हो गया जहाज लोगा, आज तक उसका पता नहीं चला। बाज लोगों का कहना है कि वो शैतान के अर्श की जगह है, अल्लाह आलम, अल्लाह ज्यादा जानता, हमें उसके बारे में तावीला नहीं करना। हदीस में इतना लिखो है शैतान अपने अर्श को पानी पे रखता और अपने चेले चपटे लोगों को दुनिया में फैलाता। क्या बोल को फैलाता? जाओ रे फितना फैलाओ, जाओ रे फितना फैलाओ। अब दुनिया के कोने कोने में पूरे शैताना फितना फैलाने आती, कोई जिना कराने वाला शैतान, कोई सूद खिलाने वाला शैतान, कोई रिश्वत खिलाने वाला, कोई झूठ बोले लगाने वाला, कोई मर्डर कराने वाला, कोई रेप कराने वाला, कोई शराब पिलाने वाला, ऐसे 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 हर एक कामों पर शैतान अलग अलग ड्यूटी पर मौजूद है। नमाजा में वसवसे डालने वाला शैतान ही अलग है। एक सहाबी आकर बोले मैं क्या नमाज में खड़ तू, मेरे को बहुत ज्यादा वसवसे आती, क्या कंट्रोल करे तो भी कंट्रोल नहीं होते, मैं क्या करूं? नबी ने कहा वो एक खास शैतान है जिसकी ड्यूटी ओनली नमाजों में वसवसे पैदा करना। तुम उनका नाम लेकर पनाह मांगो, तुम्हारे पूरे वसवसे खत्म हो जाएंगे। उसका नाम खिंजब, खे नून ज़ाद बे, खिंजब, उसका नाम खिंजब है। अगर तुमको नमाजों में ज्यादा वसवसे, अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहिल खिंजब, अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहिल खिंजब, ऐसे 3 बार पढ़ो, बाएं कंधे की तरफ ऐसा तुफ 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 कर दिया करो, तुम्हारे वसवसे खत्म हो जाए। अब नहीं खिंजब नहीं आ रहा, याद आ रहा नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े तो सारे शैताना में वो शैतान भी आ जाता। लेकिन नबी ने खुसूसियत से उसका नाम लेकर पनाह मांगने का हुक्म दिया। खिंजब का नाम लेकर पनाह मांगो, कभी वसवसे नहीं आए। वो सहाबी बोलती जब से मैं ये दुआ पढ़ना शुरू कराया मेरे नमाजों के पूरे वसवसे खत्म हो गए। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब तुम्हारे नमाजा में वसवसे आ रही तो पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िल खिंजब, बाएं कंधे की तरफ अपने फेस को टर्न कर रही की नहीं कर रही की, चुप आहिस्ता इशारे से तुफ तुफ करना। ज्यादा वसवसे आ रही तो बाजू वाले को खकार को थूकना नहीं, थू थू थू, उन्हें परेशान हो जाएगा। नमाज पढ़ते पढ़ते इन्हें कहीं थूक रहा रे, मेरे बाजू खड़ास वाला आ गया। इसीलिए जस्ट आप थूक रहेंगे तो आप कुछ मालूम रहना, बाजू वाले को मालूम ही रहना नहीं। वो बाजू वाले पर हमें असल तुम्हारे लेफ्ट खांधे पर थूकने का हुक्म रहने का, कहीं का तो शैतान वहां बेट को वसवसे पैदा करता। खैर, शैतान असर के बाद मगरिब के करीब सारे शैताना को जमा करता 24 घंटे के बाद। दूसरे दिन अब ड्यूटी पूछता क्या रे करे तू क्या करे बा, तेरा क्या ड्यूटी बा, बोल बा। सब लोगों से ड्यूटी लेता, सब लोग बोलती उन्हें क्या करे क्या करे क्या करे। सरदार मैं सूद खिला डाला है, चल रे क्या भी करे नहीं तू। सरदार मैं ये कले को चोरी कराने लगा डाला, चल 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 निकल, तू भी क्या भी करे नहीं। सरदार मैं ये कले को मर्डर कराने लगा डाला, चल निकल, तू भी क्या भी करे नहीं। सरदार मैं ये कले को जिना कराने लगा डाला, चल निकल, तू भी क्या भी करे नहीं, गलीज का हिंका। अब ऐसा बोलते 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 एक शैतान कमजोर रहता, उन्हें छोटा, उन्हें बोलता है सरदार मैं मर्द जोरू के बीच में वसवसे पैदा कर डाला, इसके दिल में उसके खिलाफ, उसके दिल में इसके खिलाफ मोड़ा पैदा कर डाला। क्या करे ये तेज ज्यादा वसवसे, ऐसे ज्यादा बहस, ऐसे ज्यादा झगड़े, इनके बहस झगड़े में तब्दील हो गई, झगड़े आको तलाक और खुला में तब्दील हो गए। कोर्टा कचेरिया पुलिस स्टेशन सब जाको लास्ट को इनको बिछड़ा तक इनका पीछा छोड़ा नहीं, सरदार मरद जुरुक बिछड़ा डाला। ये सुनते ही शैतान बुलाता उसे ऊपर, इधर आ तू, इधर आ, पहले आ ऊपर आ। ऊपर अपने अर्श पर बिठा को अपना किरीट उसके सिर को पिना को उसकी पीठ को थपक को बोलता वाह रे वाह, शाबाश तू रे करे सो काम, वाकई में मेरा दिल जीत लिया रे। सबसे ज्यादा खुश होता शैतान। जिना करे वाले की रिपोर्ट सुनको खुश नहीं होता, चोरी कराए वाले की रिपोर्ट सुनको खुश नहीं होता, सूद खाए वाले की रिपोर्ट सुनको खुश नहीं होता। दुनिया में 1000 किस्म के गुना, वो 1000 किस्म के शैतानों की रिपोर्ट सुनको शैतान खुश नहीं होता। मरद जोरू को बिछड़ाया सुनते ही ताज पिना को पीठ थपकदा जी। इसके वास्ते मियां बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता, कभी किसी पर डाउट नहीं करना। मेरा मर्द कहीं को कि हंसले एक बातें कर रहा, कोसी औरत के साथ बात कर रहा कि इसके दिल में डाउट। मेरी बीवी बातें कर रही थी, मैं घर में आते ही फोन कट करी, वो कोसे बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी कि इसके दिल में डाउट। अस्तगफिरुल्लाह। कभी भी ये नाजुक रिश्ता, इसे इस रिश्ते को शक में पैदा होने नहीं देना। कई को बोले तो एक बार शक पैदा हुआ तो उसका इलाज नहीं, अनुमानम पेद्दा रोगम बोलती हूं तुम्हारे तेलुगु में।
अनुमान का कोई इलाज ही नहीं, शक होने पैदा होने नहीं देना। मियां बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता, अटूट रिश्ता, पाक रिश्ता, नेक रिश्ता। अल्लाह के नबी क्या बोले, मियां बीवी जितने मर्तबा मोहब्बत करेंगे अल्लाह उसमें अजर और सवाब रखा। सहाबा बोले एक औरत अपने मर्द से, एक मर्द अपनी औरत से ख्वाहिश पूरी करता, इसमें सवाब कैसा? नबी बोले यही ख्वाहिश अगर तू नाजायज तरीके से पूरा करता तो क्या अल्लाह तुझे गुनाह नहीं देता? तेरी बीवी से, यानी बीवी को शौहर से ये ख्वाहिशात जायज तरीके से पूरा करने पर अजर और सवाब रखा। अल्लाह ताला मियां बीवी का रिश्ता खाली दुनिया के हद तक नहीं रखा, जन्नत में जाने तक भी रखा। दोनों तौहीद परस्त थे, दोनों जन्नत में गए तो इन्हीं मियां बीवी को अल्लाह जन्नत में भी मियां बीवी बना को रखता। इसीलिए आखिरी हदीस बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन किसी भी शख्स को जन्नत उस वक्त तक नहीं देता जब तक वो पुल सिरात के ऊपर से नहीं गुजरता। आपको मालूम ना, क़यामत के मैदान में पुल सिरात नाम का एक पुल अल्लाह कायम करके रखा। वो पुल सिरात के ऊपर से गुजरना हर एक की जिम्मेदारी, हर एक के लिए जरूरी है, चाहे वो मोमिन हो, मुनाफिक हो, यहूद हो, नसरानी, हर एक के लिए पुल सिरात पर गुजरना। पुल सिरात पर बाल से बारीक तलवार के धार से ज्यादा नोकीला पुल, वो उस पुल के ऊपर से हर कोई गुजरने के बाद ही जन्नत या जहन्नम में जा सकता। सो उस पुल पर से गुजरे बिना कोई भी शख्स जन्नत की रुख नहीं देख सकता। पैगंबर रहंदे, बड़े से बड़ा कोई भी अल्लाह का वली रहंदे, उस पर से गुजरना हर एक के लिए जरूरी। ए नहीं हमारे बहुत बड़े पीरां का थे, कहता भी रहंदे, पैगंबरां से बड़ा नम्य उनका दर्जा। पैगंबरां को भी गुजरना, पीरां को भी गुजरना, इंसाना भी गुजरना, जिन्नाता भी गुजरना, हर एक गुजरेंगे। जब गुजरते रहेंगे पुल सिरात पर, अल्लाह पुल सिरात के दाएं और बाएं दो चीजों को खड़ा कर दिया। बुखारी मुस्लिम की हदीस, अल्लाह ताला पुल सिरात के दाएं बाएं दो चीजों को खड़ा कर दिया, एक सिला रहमी को, दूसरा अमानतदारी को। अगर दुनिया में सिला रहमी मतलब रिश्तेदारी जोड़ने में जो जितना परफेक्ट रहेगा, सिला रहमी एक जानिब, अमानतदारी में कौम के पैसे नहीं खाना, अमानतदारी से खर्च करना, अमानतदारी में जो जितना परफेक्ट रहेगा, अमानतदारी एक जगह खड़ी। और ये दोनों सिला रहमी अमानतदारी आपको सहारा देके पुल सिरात पार करा देंगे। अगर आप अमानतदारी में खियानतदार बने रहोगे, सिला रहमी करने में खता रहमी करने वाले चोर बने रहोगे, ये सिला रहमी, ये अमानतदारी कभी तुमको पुल सिरात पार करने नहीं देगी, पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। या अल्लाह इन्हें मेरे बारे में बड़ा चोर था, मैं इसे आर पार होने नहीं दूंगी। सिला रहमी भी पकड़ लेगी, अमानतदारी भी पकड़ लेगी। इसीलिए सिला रहमी में भी परफेक्ट रहो, अमानतदारी में भी परफेक्ट रहो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको रिश्तेदारी को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए, रिश्तेदारी काटने वाले मज़िम्मत वाले अमल से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए।